check my answer copies and not just motivate me that I was doing really well, the positive feedback wala mechanism, but also it gave me some really wonderful tips on to how I can improve my score even better. And I have been a student of sociology at Triumph IAS, and Vikash Ranjan sir, he personally guided and mentored me through my sociology answer writing. I would like to thank personally Vikash Ranjan sir for his mentorship in both optional sociology and in essay test series. In this civil services examination also, sociology was my option after consistent guidance of Vikash Ranjan sir, and I scored this time 285 marks. I had sociology as optional. I had taken test series from Vikash Ranjan sir, and the feedback provided by sir for my test was very regular. And hello all. My name is Vishnu Shashiguma, and I secured All India rank 31 in UPSC Civil Services Examination 2023. I did my graduation in Political Science and Economics from St. Stephen's College, Delhi University. I graduated in 2021, and since then I have been preparing for the civil services. In 2022 Civil Services Examination, I secured All India rank 394, and I was allocated to Danik service, and this year I was luckily able to secure All India rank 31. So now, coming to one thing about which I would like to share with all of you is कि एक गलती जब हम सब करते हैं, like when all of us are in the beginning stage of preparation, is कि हम practice बहुत कम करते हैं, especially जो mock test हो गया for prelims and mains interviews both. हम पढ़ाई पे बहुत focus करते हैं. पढ़ाई is very important, I admit, but then it is also important कि हम अपने आप को test भी करें. और ये फोमो हमें रहता है कि हम हमेशा लगता है यार टेस्ट लिखने के टाइम पे शायद से 2 घंटा, फिर उसको एनालाइज करने में 1 घंटा, उस टाइम में मैं इतना चैप्टर खत्म कर सकता हूँ, या मैं एक नया कंटेंट ही मैं नया पढ़ सकता हूँ, सो मेरा सिलेबस भी कवर हो जाएगा. ये सब डिलेमा हमारे अंदर बहुत रहता है. तो हमें लगता है यार इज़ इट वर्थवाइल टू गिव दैट टेस्ट, और इज़ इट वर्थवाइल टू इन्वेस्ट सो मच टाइम फॉर राइटिंग अ टेस्ट. बट बिलीव मी यार, इस एग्जामिनेशन में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू प्रैक्टिस what you are going to do at the actual UPSC examination, and it is very important that you practice कि whatever content you have learnt हम उसको कैसे अप्लाई कर सकें. देखिए वेपन्स तो हम सभी कलेक्ट कर रहे हैं, बट देन अगर हमें पता नहीं कि वो वेपन्स कैसे चलाए, कब चलाना है, तो इज़ इट वर्थवाइल टू हैव दैट वेपन्स. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट जो भी वेपन्स आपके आर्सेनल में है आप उसको टेस्ट भी करें, तो आपको पता चले कि आप में क्या कमियां है या उस कंटेंट में क्या कमियां है. राइट. So now coming to preliminary examination का stage पे, I did around 100 to 120 mock question papers last year, and that really helped me to build my base. So मैंने कब शुरुआत किया था 100 to 120 सॉल्व करने के लिए? I began in the month of January, around New Year के बाद January 10 के आसपास से I began solving mock question papers for prelims. I was in a institute in South India, Lead IAS. वहाँ पे एक शेड्यूल था, वहाँ के टेस्ट सीरीज़ के शेड्यूल के हिसाब से I was doing the mock tests as per the schedule, and no matter यदि मेरा सिलेबस हुआ हो, नहीं हुआ हो, कंप्लीट भी नहीं हुआ हो, या मैंने पढ़ाई भी नहीं किया है उस सिलेबस का, I made it a point कि यार जिस दिन टेस्ट था उसी दिन मैं टेस्ट देके कंप्लीट कर दूँ. बिकॉज फिर होता क्या है कि इतने सारे टेस्ट हमारे आगे शेड्यूल्ड रहते हैं कि वो टेस्ट फिर कंपाइल होने लग जाता है. देन इट फील्स एन इनर्शिया, यार मैं करूँ या ना करूँ, मैं पढ़ाई कर लेता हूँ. यू गेट एन इनर्शिया कि यार इतना एक्यूमुलेट हो गया, चलो छोड़ देता हूँ. सो ऑलवेज मेक श्योर यार जो भी शेड्यूल आपका है टेस्ट सीरीज़ का, आप उसको रिलीजियसली फॉलो करें. दैट इज़ द फर्स्ट थिंग. नाउ हाउ आई डिड द टेस्ट सीरीज. आई इनिशियली बिगैन विथ माई सेक्शनल. तो मैं थोड़ा इम्पेशेंट था इनिशियली, तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा चलो एक फुल लेंथ टेस्ट ले लेते. आई टुक वन फुल लेंथ टेस्ट एंड आई फेल्ड इन दैट मिजरेबली. I was getting around 66 to 69 का स्कोर का रेंज में, एंड आई was so sad and dejected कि मुझे लगा यार ये मतलब ये मेरे बस की बात नहीं होगी यार, प्री निकलना मेरी बस की बात नहीं है. बट देन आई was wrong there, because see you have to build your content, you have to understand कि यार आपने जो डिटेल में पढ़ा है उसको आप अप्लाई करोगे, तो पहले आपको सेक्शनल टेस्ट करने चाहिए. सो ऑलवेज मेक श्योर दैट यू डू द सेक्शनल टेस्ट वेल इन एडवांस्ड बिफोर यू गो टू द फुल लेंथ टेस्ट. तो मैंने क्या किया था, जनवरी, फरवरी, मार्च मिड तक आई वॉज डूइंग सेक्शनल टेस्ट, एंड मार्च मिड से आई वॉज बिगिनिंग विद द फुल लेंथ टेस्ट. बट आई ऑल्सो मेड इट अ पॉइंट कि जब भी मैंने फुल लेंथ टेस्ट किया है उसका मतलब ये नहीं था कि मैंने सेक्शनल टेस्ट को छोड़ दिया है. आई ऑल्सो डिड द सेक्शनल टेस्ट विथ द फुल लेंथ टेस्ट व्हेन आई बिगैन इन मार्च. तो नाउ हाउ डिड आई मैनेज टू डू सो मेनी टेस्ट एंड व्हाट डिड आई डू? See, one philosophy, one thing which I followed over here was
देखिए यूपीएससी में एक अलग ही प्रेशर रहता है जब हम एक्चुअल एग्जामिनेशन हॉल पे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. इट्स अ डिफरेंट प्रेशर, डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर. सो व्हाट आई ट्राई टू डू वाज, मैं थोड़ा प्रेशर इधर जब हम अपने कंफर्ट्स ऑफ हाउस में बैठ के जब हम करते हैं, आई ट्राई टू रेप्लिकेट दैट प्रेशर ओवर हियर. सो व्हाट आई डिड वाज, आई पुट अ टाइमर ऑफ इंस्टेड 2 आवर्स की जगह मैंने 1 आवर 40 या 1 आवर 45 मिनट्स का टाइमर लगाया था. एंड आई डिड दैट फॉर प्री. सो दैट्स हाउ आई डिड फॉर GS1. 1 आवर 45 मिनट्स का टाइमर लगा के मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करता था, बोथ सेक्शनल एज वेल एज फुल लेंथ टेस्ट. नाउ कमिंग टू हाउ आई एनालाइज्ड, आई यूज टू लुक एट द क्वेश्चंस जहाँ मैंने गलतियाँ की थी. मेरे सही क्वेश्चंस पे मैं ज़्यादा फोकस नहीं करता था, आई जस्ट यूज टू स्किम थ्रू दैट. बट जहाँ मैंने गलतियाँ की थी उस क्वेश्चंस पे मैं उसका डिटेल एनालिसिस करता था, डिटेल में पढ़ता था. मैं देखता था किस वजह से मेरी गलती हुई, या तो मेरी कंटेंट की कमी थी या मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ा. कभी कभी क्या होता है कि हम क्वेश्चन को सीरियसली नहीं पढ़ते, जल्दी जल्दी में डिटेल में देते. जैसे फॉर एग्जाम्पल, लायंस आर नेचुरली फाउंड, मैंने नेचुरली पढ़ा नहीं होगा, फाउंड ही देखा होगा तो मैंने कुछ और डाल दिया. या फिर विच इज़ नॉट द करेक्ट आंसर, ये नॉट मैंने पढ़ा नहीं होगा. तो ये सब ट्रिवियल मिस्टेक्स आपको एक अटेम्प्ट कॉस्ट कर सकते हैं. तो आई यूज टू अंडरस्टैंड कि मैंने ये गलती क्यों की. तो या तो वो क्वेश्चन रीड करने में गलती हो गई होगी, या मुझे कंटेंट अवेलेबिलिटी नहीं है तो मैं कंटेंट ले लेता था आंसर की से, या मेरा टेक्निक या मेरा लॉजिक कुछ जो है जो मैंने यूज़ किया वो गलत हो गया होगा तो वो मैंने यूज़ किया. तो दैट वाज समथिंग विच आई डिड फॉर GS1. आई यूज्ड टू एनालाइज व्हाई माय आंसर्स वेंट रॉन्ग. राइट आंसर्स में मेरा ज़्यादा फोकस नहीं था. एंड बिलीव मी, आज भी यदि आप देखोगे तो आपने जहाँ गलती की है, जिस क्वेश्चन या जिस कॉन्सेप्ट में आपने गलती की है, वो कॉन्सेप्ट आपको आज भी याद रहेगा. दैट इज समथिंग विच वाई टेस्ट सीरीज आर वेरी वेरी हेल्पफुल. डूइंग द मॉक टेस्ट आर वेरी हेल्पफुल. एंड ऑल्सो हेल्प्स यू टू बिल्ड अ टेम्परामेंट, बिकॉज क्योंकि देखिए 2 घंटे में वो प्रेशर में आपको आंसर MCQ सॉल्व करना एक स्किल सेट चाहिए रहता है. एंड दैट स्किल सेट कैन ओनली बी डेवलप्ड. नो वन इज बॉर्न विद दैट स्किल सेट. दैट स्किल सेट कैन ओनली बी डेवलप्ड बाय प्रैक्टिसिंग प्रैक्टिसिंग एंड प्रैक्टिसिंग. क्रिकेट में भी आप देखिए, आप प्रैक्टिस करने के बाद ही, प्रैक्टिस करते 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 ही आप एक अच्छे बैट्समैन या एक बॉलर बनते हैं. वैसे इधर ऑल्सो यू प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, देन ओनली यू विल बी एबल टू सॉल्व द प्रीलिम्स पेपर विथ ईज. And so that's what I did for GS1 in the pre. And last 10 days में मैंने क्या किया, 2014 से लेके 2022 या 2021 का क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मैंने यूपीएससी के टाइम पे 9:30 to 11:30 और 2:30 to 4:30 GS1 एंड CSAT दोनों मैंने बैठ के शिद्दत से मैंने सॉल्व किया था. दैट रियली हेल्प मी टू फाइन ट्यून माई सेल्फ, माई ब्रेन एंड माई होल प्रोसेस फॉर द एक्चुअल UPSC एग्जामिनेशन. वो एक टाइप में मैंने सिमुलेट किया था. एंड आई ऑल्सो मेड श्योर कि जहाँ भी ओपन टेस्ट अवेलेबल थे, जैसे साउथ में ट्रिवांड्रम में डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स होल्ड फ्री ओपन मॉक टेस्ट अवेलेबल, तो मैं वहाँ जाके कॉलेज सेटिंग्स में जाके मैं देता था. बिकॉज आई वांटेड टू इंश्योर कि यार मैं डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में, कभी हो सकता है कि बहुत गर्म जगह पे लाइक बहुत गर्मी हो, फ़ैन चल नहीं रहा हो, या थोड़ा ह्यूमिड कंडीशंस में आप टेस्ट ले रहे हो, तो डिफरेंट कंडीशंस में अपने आप को अकस्टम करके टेस्ट देता था. इट माइट बी स्मॉल थिंग्स, बट बिलीव मी these small things also play a very crucial role while you're answering in your prelims examination. And also what I did was कि freeupscmaterials.com वेबसाइट से मैं डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के क्वेश्चन पेपर्स प्रिंट करता था. एंड आई ऑल्सो यूज टू सॉल्व दैट, ताकि आई यूज टू गेट अ डाइवर्स सेट ऑफ क्वेश्चंस एंड डाइवर्स सेट ऑफ एक नॉलेज भी मुझे मिले, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को भी मैं सॉल्व कर सकूँ. तो दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड एंड अफोर्डेबल वे फॉर अस to solve to try to gain access to test series. That is one thing which I did. CSAT is very important. Coming from a humanities background, CSAT was a very big challenge for me. CSAT के लिए मेरा स्ट्रैटेजी ये था, ऑब्वियसली बेस कंटेंट प्रैक्टिस करता था. जनवरी से ही मैं क्या करता था CSAT के लिए, CSAT के मॉक क्वेश्चन पेपर्स मैं 1 hour 45 minutes में सॉल्व करता था. It was very very helpful. Why? Because CSAT you need to understand, you have to solve a series of question papers with series of questions in a limited time span. वो स्किल मुझे ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके मिला. नंबर 2, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्पीड आपका बढ़ जाता है, तो आपको कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन में भी आपकी स्किल सेट बढ़ जाता है, बिकॉज यू नीड टू रीड फास्ट. एक रीडिंग स्पीड भी बहुत होना चाहिए. दैट रीडिंग स्पीड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वाइल यू डू द कॉम्प्रिहेंशन वाला एस्पेक्ट. सो आई डिड दैट ऑल्सो एंड रीजनिंग ऑल्सो. तो 2 things, 1, my reading speed improved. 2, I was able to select the questions which I knew.
इनिशियली क्या लगता है कि हमें सब करने की आदत होती है, तो वी लाइक यार मैं 80 के 80 करूँगा. नो, दैट इज़ नॉट पॉसिबल. So personally for me that was not possible. I don't know बहुत सारे like there will be wizards of mathematics and all, you know, will be able to do that. But personally for me, मेरे लिए तो humanly possible नहीं था पूरे 80 करना. So it is very important कि आप पता चले कि आपको कौन सा सवाल करना है, कौन सा सवाल छोड़ना है. It is important that you skip also certain questions. क्योंकि मुझे after point of time I realized looking at the question itself कि यार ये question मुझसे नहीं होगा, तो मैं वो skip करता था. तो मेरा टाइम उस क्वेश्चन पे वेस्ट नहीं होता था बिकॉज आई न्यू यार मुझे आंसर नहीं मिलना है. तो वाई वुड आई डू दैट? आई कुड फोकस ऑन सम अदर क्वेश्चन. कभी कभी ऐसा होता था कि इनिशियल सेक्शन ऑफ पेपर में बहुत ही टफ क्वेश्चन होते थे, बहुत टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन होते थे. यदि आपने आइडेंटिफाई कर दिया कि वो टाइम कंज्यूमिंग है या टफ है, एंड इफ यू गो अहेड यू विल रियलाइज कि यार आपके आगे के जो ईजी सवाल है वो एक्चुअली एंड ऑफ द क्वेश्चन पेपर में हो सकते हैं शायद से, राइट? तो वो स्किल भी, वो एक आइडिया भी आपको क्वेश्चन पेपर करने से ही मिलता है. सो जस्ट लाइक फॉर व्हाट आई डिड वो जीएस, सीसैट का मैंने जनवरी से ही सेक्शनल एंड फुल लेंथ दोनों सीसैट का आई डिड इट इन 1 hour 45 minutes. रियली हेल्प मी टू विथस्टैंड दैट प्रेशर ऑफ सीसैट. वो टाइम बेस्ड अप्रोच से मैं सीसैट के हर क्वेश्चन को मैं कर पाता था. हर क्वेश्चन इन द सेंस कि नॉट लाइक सीसैट के क्वेश्चन को मैं टैकल कर पाता था. एंड यू नो अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई नीड टू लीव, व्हाट आई नीड टू डू, मतलब व्हाट आई नीड टू सॉल्व. And again comprehension wise also that really helped me to ensure that मैं comprehension पे maximum questions solve कर सकूँ. तो that was my approach for prelims. Coming to mains का answer writing practice I did during way before prelims, like basic answer writing. As a beginner I did my answer writing practice from you say October November से मैंने answer writing practice शुरू कर दिया था. बट टेस्ट सीरीज बेस्ड, लाइक एक टेस्ट सीरीज, एंड उधर भी मैंने टाइम रखा था, बट टाइमर इन द सेंस यार उतना स्ट्रिक्ट भी नहीं. 11 मिनट का एक टाइम रिक्वायर्ड है 15 मार्कर के लिए. तो आई यूज टू टेक अराउंड 15 to 17 minutes ऑफ टाइम. दैट इज नेचुरल बिकॉज यार यू आर इन द बिगिनिंग, यू कांट बी एक्सपेक्टेड टू यू नो हैव दैट परफेक्ट अप्रोच. तो वो नहीं होता, तो इट्स फाइन. दैट्स हाउ यू बिगिन. पर धीरे धीरे वो टाइम कम होता गया. एंड जब मैंने टेस्ट सीरीज शुरू किया, आई बिगैन माई टेस्ट सीरीज ड्यूरिंग द प्री के बाद रिजल्ट आने के बाद से मैंने टेस्ट सीरीज शुरू किया था. एंड उधर भी आई डिड मल्टीपल टेस्ट सीरीज. आई टुक 3 to 4 इंस्टीट्यूट्स का टेस्ट सीरीज एंड डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में करता था. मैंने दोनों बार एवरी डे फॉर 3 months शिद्दत से मैंने 8 PM to 9 PM आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ऑफ 5 questions PYQs एंड करंट जो भी अवेलेबल मतलब करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चन है, 5 questions में डेली लिखता था एंड उसका रिव्यू करवाता था ताकि मुझे एक आइडिया भी मिले. एंड वी यूज्ड टू हैव अ ग्रुप, वी यूज्ड टू हैव अ वेरी बिग ग्रुप, तो उसमें मैं करता था, एक आइडिया भी मिले, वो आंसर्स भी डिस्कस होते थे, कंटेंट डेवलप हुआ उससे. यूज टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द PYQ ट्रेंड्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस बेसिस पे आते हैं. योर आंसर राइटिंग स्किल सेट ऑल्सो इम्प्रूव्स. सो दिस वॉज समथिंग विच आई डिड, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस. एंड बहुत ही यू नो यू फील वेरी एग्जॉस्टेड, बहुत ही बोरिंग लगता है, बहुत ही आपको लाइक यू वुड हैव दैट इनर्शिया. बट 3 weeks के बाद इट बिकम्स अ हैबिट. You will now enjoy writing that answers. That is something you know which I did for my mains. And obviously answer writing practice is test series मैंने बहुत सारे लिए थे. Again I began with the sectional test में लेता था and उधर मैं आंसर की हर एक चीज़ का पढ़ता था and उधर मैं skim through करता था. I did not read it detailed में. I used to skim through and I used to identify those points which I had not written, which I felt are very very innovative या कुछ वाव पॉइंट्स है, वाव फैक्टर वाले पॉइंट्स है. वो पॉइंट्स मैं अपने आंसर शीट में रेड पेन से मैं लिख डालता था. सो व्हेनेवर आई यूज्ड टू रिफर बैक, आई यूज्ड टू रिफर दोज आंसर बुकलेट्स व्हिच आई हैड रिटन. तो उससे मुझे वो रेड पेन से जो भी मैं लिखता था वो मेरे मन में लाइक इट यूज्ड टू गेट रजिस्टर्ड इन माई माइंड. अगेन हियर 3 hours में लिखता था बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप 2 hour 45 minutes या 2 hour 50 minutes में लिखे. इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज मेन्स में यार 3 घंटा भी बहुत कम लगता है. So something, and initially I was not able to finish the question papers. It was only in the last months that I was able to finish the test series very much. Like 20 questions पूरा मैं complete कर पाता था. And again hectic था, but then वो test series का schedule again just like what I did for pre, पढ़ा हो या portion complete हुआ हो या ना हुआ हो, it does not matter. Personally for me what I did was जिस दिन test था उस दिन मैं जाके test लिखता था because I knew कि मैंने test नहीं लिखा, it would get compiled, it would get accumulated, so it becomes an inertia for us to write.
So again, daily answer writing practice plus test series up, multiple, like I used to do that. And again, review मैंने क्या किया था, peer group था and I used to have the mentors, तो multiple reviews मैंने कराए थे. So I used to get different ideas, different views on the answers, and जो views मुझे सबसे accumulate best of all the views लेके I used to bring some changes in my answers. And मेरे answers में मैंने ये focus किया था, मैंने GS 1 2 3 में point wise लिखा था. And और मेरा फिलोसफी यही था, मैक्सिमम पॉइंट्स लिखो. और वो मैक्सिमम पॉइंट्स 2 रीजंस की वजह से इस बार, मतलब पिछले बार भी हुआ, इस बार भी बेटर हुआ. वाई? बिकॉज 1, कंटेंट मेरा बढ़ा बाय कंटेंट एनरिचमेंट विच आई डिड. एंड नंबर 2, अगेन मैक्सिमम राइटिंग की वजह से वो स्टिपुलेटेड टाइम में मेरा राइटिंग स्पीड भी बढ़ गया एंड उसकी वजह से मैं ज़्यादा पॉइंट्स भी लिख पा रहा था. सो दिस वॉज वॉट आई वॉज डूइंग फॉर द टेस्ट सीरीज फॉर मेन्स. Interview के लिए, as you all know, give maximum number of mock interviews and take up the feedback which you feel is right for you, which you feel is very much sensible and which you feel you can incorporate. So at the end of the day, again, the whole philosophy for the mock tests, when to begin, how to begin, is that maximum practice करना चाहिए, because maximum practice से ही आप अपना skill set improve कर सकते हो. And then just don't wait कि यार मैं सब पढ़ के test दूंगा. Then if that's the case, then I think यार हम कभी भी लिख नहीं पाएंगे या कर नहीं पाएंगे, because this syllabus ही इतना बड़ा है कि आप कभी claim नहीं कर सकते यार मैंने सब पढ़ लिया. तो always जितना आपने 50% भी पढ़ा हो, try to write that, because original UPSC में भी आपको bouncers आएंगे जहाँ आपको कुछ पता ना हो, बट आपको वो टैकल करना पड़ेगा. तो टैकल करने का स्किल भी आप ये मॉक टेस्ट करके डिफिकल्ट क्वेश्चंस करके ही आपको मिलेगा. So that would be some insights which I would like to share with all of you, which I found very helpful. So thank you very much, and all the best for the examination ahead. Thank you.